Hello guys, I am Pratiksha Chauhan, your educator on Arpita Sharma classes. We are going to cover today environment and ecology based current affairs topics. Before we resume, here is a wonderful announcement. Unacademy has got UPSC CSC aspirants a free test series made by top Unacademy educators to unlock the plus experience for free and start learning from the best. Use code ARPITA10. T20 Daily Current Affairs Test Series 20 question 20 minutes detailed test analysis. Unacademy Rise 2.0 20 questions 30 minutes English and Hindi. Unacademy Impulse 30 multiple choice questions 40 minutes detailed test analysis. And how to enroll in the test for free? Download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app, select the goal as UPSC CSC, click on the link above and then on enroll. When prompted, please enter the code ARPITA10 to activate your free plan. Take part in the largest online test series for free for UPSC CSC aspirants. This test series will have questions from complete syllabus for UPSC prelims and mains. These tests are created by the Unacademy top educator. Detailed analysis for all the tests by top educators in order to improve your command and clear all your doubts. Ranking for the test will be provided if you take up the test live. The test paper will be available in both Hindi and English. Hurry up, enroll now. So today we will study about environment and ecology current affairs based topic. First topic is effects of climate change on ocean, nitrogen emission hotspot and cyclone Titli and cyclone Luban. So we will start with the topic. Today's first topic is effects of climate change on ocean. अब ये क्यों न्यूज में है? Why is in this news? Because Intergovernmental Panel on Climate Change released a special report titled Ocean and Psychrosphere in the Changing Climate. जो Intergovernmental Panel on Climate Change है उसने एक अपनी स्पेशल रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है Ocean and Psychrosphere in the Changing Climate. अब आईपीसीसी जो अपनी फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट में कहता है कि जितने भी ओशंस हैं पूरे वर्ल्ड के वो 60% फास्टर हीट कर रहे हैं. दैट मीन्स ऑल ओशंस इन द वर्ल्ड आर हीटिंग 60% फास्टर. और फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट में और क्या क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. World oceans has absorbed 90% of temperature rise. So जितने भी वर्ल्ड ओशन है वो 90% एब्जॉर्ब कर रहे हैं जितना भी टेम्परेचर राइज हो रहा है. ओके, सो सी लेवल राइज इम्पैक्ट. सी लेवल राइज होने के क्या क्या इम्पैक्ट है? फूड सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज जो हो रहे हैं, और जितनी भी लो लाइंग कंट्रीज हैं वो रिस्क पे हैं. मतलब लो लाइंग कंट्रीज इनटू रिस्क. अब as a result of increasing rise of ice loss from Greenland and Antarctic ice sheets, ocean level rose around 15 centimeters during 20th century and are currently rising at the rate of 3.6 millimeters per year and accelerating. Okay, so it is about fifth assessment report. So let us understand something about Intergovernmental Panel on Climate Change, that is IPCC. It is founded in November 1988, founded by World Meteorological Organization and United Nations Environment Program. UN body, अब ये UN body है जो कि assess करती है the science related to climate change. अब इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड पॉलिटिकल लीडर्स विद periodic scientific assessment concerning climate change, its implications and risk, as well as to put forward adaptations and mitigation strategies. मतलब ये पॉलिटिकल लीडर्स को एक पीरियोडिक साइंटिफिक असेसमेंट देती है विद अ कंसर्निंग, जिसमें कंसर्न होता है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और उसके रिस्क क्या हैं, और उसको फॉरवर्ड एडेप्शन या फिर उसके अडेप्शन या फिर स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताती है. ओके, अब इसका कंपोजिशन क्या है? 195 मेंबर स्टेट्स हैं और India is a part of it. That means India is a member. It does not conduct research of its own. मतलब ये अपनी खुद की रिसर्च नहीं कंडक्ट करता है. अब जो आईपीसीसी ने रिपोर्ट दी है जिसका नाम है ओशन एंड साइक्रोस्फीयर इन अ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, अब उसके बारे में कुछ समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. First report that discusses the effects of climate change on oceans and parts of the Earth's
frozen in ice collectively known as क्राइसोस्फीयर। अभी क्राइसोस्फीयर होता क्या है, जो ये पहली रिपोर्ट है जिसमें के बारे में डिस्कस किया गया है कि क्लाइमेट के इफेक्ट क्या है ओशन और जो पार्ट ऑफ फ्रोजन इन आइस है, ओके, दैट इज नोन एज क्राइसोस्फीयर। अब ये 3 लॉन्ग ईयर सर्वे था जिसमें एक रिपोर्ट में समराइज किया गया कि उसके एडवर्स इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज पे ऑन द ओशन, कोस्टल रीजन्स, पोलर आइस कैप्स, माउंटेन इकोसिस्टम, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज। ओके, so the ocean and cryosphere report addresses these ecosystem in 5 different chapters as follows। जो ये रिपोर्ट है ocean and cryosphere in climate change that addresses, मतलब इसने 5 different chapters introduce किए हैं या फिर address किए हैं that is related to ecosystems as follows। पहला है high mountain areas, second polar regions, third rising sea levels and the impacts on islands and coast, fourth changing ocean and marine ecosystem and their effects on the communities that depend on them, managing the risk of extreme climate changes। So it is about the report। Let us understand the impact on warming ocean। It leads to more frequent tropical cyclones। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा tropical cyclones की तरफ लीड करते हैं, tropical cyclones की तरफ। ओके, तो अब as per the report, extreme sea level events that have historically occurred once each century will occur every year by 2050। इस रिपोर्ट में ये है कि जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं सी लेवल या एक्सट्रीम पर वो हिस्टोरिकली अकर्ड एक बार हो सकते हैं बाय ईयर 2050। ओके, अब इंक्रीजिंग फ्लडिंग रिस्क फॉर लो लाइन कोस्टल सिटीज एंड आइलैंड्स कम्युनिटीज। एज प्रीवियसली वी डिस्कस कि लो लाइन जितने भी कंट्रीज हैं या फिर कोस्टल सिटीज हैं, आइलैंड्स कम्युनिटीज हैं, उसमें फ्लड के रिस्क बढ़ जाते हैं। ओके, अब ग्लेशियर मेल्ट, reduction in snow cover and thawing of permafrost projected to increase the risk of landslides, avalanches, rock falls and floods in mountain region। जितने भी मतलब लाइक इसके you can say factors क्या क्या है, that is glacial melt, reductions in snow cover and thawing of permafrost। These are the factors जो कि landslide, avalanches, rock falls और floods in mountain regions के रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ओके, कि ये सब चीजें हो सकती हैं। अब आता है वार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड ओशन हैज ऑल्सो डिसरप्टेड द अबंडेंस ऑफ फिश एंड शेलफिश स्टॉक्स इन सम रीजन्स एंड living communities that depend on seafood at risk of decreased food security। It's about the impact of warming ocean। Now moving on towards the second topic, that is nitrogen emission hotspot। Why this is in news? Because Greenpeace analysis find areas in Delhi NCR, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Odisha as the biggest contributors of nitrogen पॉल्यूशन इन इंडिया। मतलब जो ग्रीन पीस है उसने ये एनालाइज किया कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर नाइट्रोजन पॉल्यूशन के कौन सी सिटीज़ हैं, तो दैट इज दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा के। ओके, अब जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नाइट्रोजन है आफ्टर चाइना। चाइना इज द फर्स्ट। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट नाइट्रोजन पॉल्यूशन। जो नाइट्रोजन है इज द डोमिनेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। इट इज इनर्ट, डज नॉट रिएक्ट। मतलब ये इनर्ट तो होती है बट रिएक्ट नहीं करती है। ओके, अब when it is released as a part of compound from agriculture, sewage and biological waste, nitrogen is considered reactive। जबकि ये रिलीज होती है एग्रीकल्चर, सीवेज और बायोलॉजिकल वेस्ट से, तो नाइट्रोजन है वो रिएक्टिव होती है। ओके, इट मे बी पॉल्यूटिंग एंड इवन एक्सर्ट अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये पॉल्यूटिंग हो सकती है और एक्सर्ट कर सकती है पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को। अब नाइट्रोजन इज ऑल्सो लिंक टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाइट्रोजन है वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लिंक कर सकती है। पॉल्यूशन और रिवर्स एंड सीज हो सकते हैं, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है, इसकी वजह से हेल्थ, इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड्स में भी डिस्टर्बेंस या फिर लॉस हो सकता है। ओके, अब नाइट्रोजन पॉल्यूशन इज कॉज्ड फॉर एग्जाम्पल कैसे, बाय एमिशन फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स, livestock manure and burning fossil fuels। These are some of the factors
which nitrogen pollution is caused. Okay. अब nitrate from chemical fertilizers, manure and industry pollutes the rivers and seas, posing a health risk for humans, fish, coral एंड प्लांट लाइफ. जो नाइट्रेट जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, इंडस्ट्री पोल्यूट से निकल रहे हैं, रिवर्स और सीज तक जा रहे हैं, वो हेल्थ रिस्क कर सकते हैं ह्यूमंस, फिश और कोरल और प्लांट को भी. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड नाइट्रोजन एमिशन इन इंडिया. Nitrogen oxide emission grew at 52% from 1991 to 2001. ओके, जो 1991 से 2001 तक का पीरियड है उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो 52% इंक्रीज की है. ओके, और 2001 से लेके 2011 तक 69% इंक्रीज की है इन इंडिया. अब एग्रीकल्चर जो है वो इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू नाइट्रोजन एमिशन. ओके, अब नॉन एग्रीकल्चर एमिशंस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड के जो हैं वो ग्रोइंग रैपिडली, मतलब ज्यादा से जल्दी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं. ओके, लाइक विथ सीवेज एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग फॉर पावर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री लीडिंग द ट्रेंड. ओके, now comes to the next topic, that is cyclone Titli. Why this in news? क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, दैट इज RIMS, फॉर अफ्रीका एंड एशिया हैज टर्म्ड तितली द सीवियर साइक्लोनिक storm devastated Odisha in October as rarest cyclone. जो RIMS था फॉर अफ्रीका और एशिया के में टर्म किया तितली, दैट इज जो साइक्लोन का नाम दिया वो तितली दिया. उसमें ये कहा गया कि एक ऐसा रेडियस साइक्लोन है जो कि ओडिशा में अक्टूबर में आया था. ओके, अब जो ये साइक्लोन तितली नाम है वो कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से. ओके, अब ये ट्रेंड में क्यों है? बिकॉज तितली इज द थर्ड मेजर साइक्लोन टू हिट द ओडिशा आंध्र कोस्टल जोन इन द लास्ट 5 years ऑल इन अक्टूबर. तितली जो है वो थर्ड मतलब तीसरा ऐसा साइक्लोन है जो कि ओडिशा और आंध्र के कोस्टल जोन में 5 साल के अंदर अंदर आया है इन मंथ ऑफ अक्टूबर. ओके, जो और भी साइक्लोन थे वो भी अक्टूबर में ही आए हैं जहां तक. ओके, द अदर टू आर इन द दैट फिल्म फिलियन 2013 में आया था, हुडहुड दैट इज इन 2014 साइक्लोन. अब cyclones have also been frequent in the Odisha, Andhra coastal regions, but notably the frequency of instant cyclones in the area has increased over the year. Okay, so let us understand what are the characteristics which makes Titli cyclones rarest of rare. मतलब क्या characteristics हैं तितली cyclone को जो rarest of rare बनाते हैं? पहला है recurvature after landfall retaining its destructive potential after लैंडफॉल. ये लैंडफॉल क्या होता है पहले ये समझते हैं. जब भी कोई साइक्लोन आता है और वो कोस्ट से टकराता है, ओके, और उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, मतलब जो उसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, उसे लैंडफॉल कहते हैं. रिकर्वेचर मींस अपना रास्ता बनाता है, मतलब अपना खुद का रास्ता बनाता है. अब इस डायग्राम से एक चीज समझते हैं कि हम बात करते हैं ट्रॉपिक साइक्लोन की, जो कि ट्रॉपिक में आता है, जैसे अर्थ है और 0 डिग्री पर इक्वेटर है, विच यू कैन सी इन डायग्राम. ओके, और 23 हाफ पे नॉर्थ एंड साउथ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ये जो बीच का एरिया होता है उसे ट्रॉपिक कहते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम. अब दूसरा है रिकर्वेचर अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज फॉर मोर देन 2 days, मतलब कोस्टल एरियाज में फिर से अपना रास्ता बनाता है फॉर मोर देन 2 days के लिए. ओके, अब समझते हैं रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, दैट इज RIMS. इसके बारे में समझते हैं. ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और owned and managed by 45 collaborating countries in Asia, Pacific and Africa region. Okay, it seeks to establish regional early warning system with multi-hazard framework for generation. Multi-hazard framework for generation करता है और communication for early warning information and capacity building for preparedness and response to transboundary hazards.
अब ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन सुनामी से रिलेटेड और जो कुछ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये एक्ट करता है एज अ टेस्ट बेड फॉर इमर्जिंग technologies and help to enhance performance. So it is all about the RIMS. So let us understand the next topic, that is cyclone Luban. Why is in this news? क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म लुबान ये थर्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि अफेक्ट किया अरेबियन पेनिनसुला को इन 2018 आफ्टर साइक्लोन सागर एंड मिकनू। ओके, आफ्टर मतलब साइक्लोन सागर और मिकनू के बाद ये थर्ड साइक्लोन था जिसने अरेबियन पेनिनसुला को अफेक्ट किया इन द ईयर 2018, ये याद रखिएगा। और डेवलप्ड एंड ऑन अक्टूबर 6 इन सेंट्रल अरेबियन सी, ये 6 अक्टूबर मींस 6 अक्टूबर को ये सेंट्रल अरेबियन सी पे डेवलप हुआ था। ओके, प्रोड्यूस फ्लडिंग रेन्स इन सोमालिया, ओमान एंड यमन। अब ये साइक्लोन लुबान जो है, लुबान कहां से उसको नेम मिला? ओमान से। ओके, अब हम दोनों साइक्लोन के बारे में कुछ चीजें समझते हैं, दैट इज साइक्लोन तितली एंड साइक्लोन लुबान। दिस इज अ ट्विन साइक्लोन। जो ये दोनों साइक्लोन लुबान और तितली हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि मोर डिवास्टिंग, मोर डिस्ट्रक्टिव होता है और जो कि ग्रेट लॉसेस कॉज करता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव या फिर लॉस लाता है। ओके, अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? जो कि वायलेंट स्टॉर्म होता है जो कि ओशन इन ट्रॉपिकल एरियाज में ऑरिजिनेट होता है और मोर ओवर द कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू वायलेंट विंड्स, जो कि कोस्टल एरियाज में लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन लाता है। किस किन रीजन से? वायलेंट विंड्स के कारण, हैवी रेनफॉल के कारण और स्टॉर्म सर्ज के कारण। जो वायलेंट विंड्स है उन्हें स्क्वेल्स भी कह सकते हैं, हैवी रेनफॉल है टोरेंटियल रेनफॉल भी कह सकते हैं। ये दो टर्म याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। अब इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स irregular wind movement involving close circulation of air around a low pressure center occur. Okay, this close circulation is the result of Coriolis force due to rotation of earth. Okay, जो ये क्लोज सर्कुलेशन होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ होता है, जो वो किस रिजल्ट किसकी, मतलब कौन सी चीज फोर्स आती है? कोरियोलिस फोर्स आती है। ओके, अब विंड मूवमेंट आर एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर जो विंड होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज होती है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड सिचुएशन फॉर जनरेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये कौन कौन सी सिचुएशन है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाती हैं या फिर जनरेट करती हैं? लो प्रेशर एरियाज, टेम्परेचर शुड बी मोर देन 26.4 डिग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, मतलब साइक्लोन वहीं पर जनरेट होता है जहां पर लो प्रेशर होता है, टेम्परेचर या हीट 26.4 डिग्री से ज्यादा रहा लॉन्ग टाइम तक और मॉइस्चर अवेलेबल रहे, साइक्लोन सस्टेन रहता है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बेस्ड करंट अफेयर्स टॉपिक्स फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।